گوری کوی کی اپنی ساس کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں میں روزانہ نوک جھوک ہوتی تھی۔ ایک دن گوری کوی اپنی الماری کھولتی ہے۔ وہاں اس کی ساس کا گہنوں کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ گوری کوی وہ ڈبہ اٹھاتی ہے اور اسے کھول کر گہنے دیکھنے لگتی ہے۔ کتنا پیارا سونے کا ہار ہے، پتہ نہیں کب اس بڑھی سے میری جان چھوٹے گی اور یہ سونے کا ہار میں اپنے گلے میں پہنا کروں گی۔ پیچھے سے گوری کی ساس بھی آ جاتی ہے۔ بہو، میرے گہنوں کا ڈبہ کھول کر کیوں کھڑی ہو؟ وہ میں تو بس الماری کی صفائی کر رہی تھی تو اسے بھی کھول کر دیکھ لیا۔ مجھے پاگل مت بناؤ، بوڑھی ہوں لیکن اندھی نہیں ہوں۔ مجھے سب پتا ہے کہ کیسے میرے سونے کے ہار پر تم نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ تم تو یہی چاہتی ہو کہ یہاں مجھے کچھ ہو اور وہاں میرے گہنے تمہارے پاس آ جائیں۔ چاہتی تو میں یہی ہوں، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا کھاتی ہو کہ تمہیں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ رانو کی بھی میرے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی۔ وہ کتنی بھاگیہ شالی ہے کہ ساتھ ہی اس کی ساس مر گئی۔ اب کوئی اسے کچھ کہنے والا نہیں اور ایک میں ہوں یہاں پر بیچاری جو مجھ پر 24 گھنٹے مسلط رہتی ہیں۔ آنے دو میرے بیٹے کو گھر، سب بتاتی ہوں تمہارے بارے میں۔ جب کالو کوا کام سے گھر آتا ہے تو اس کی ماں گوری کی ساری باتیں کالو کو بتا دیتی ہے۔ بیٹا، میں تو بوڑھی ہوں، کبھی غلطی سے میرے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، لیکن تمہاری پتنی تو بات پکڑ کر ہی بیٹھ جاتی ہے، ہر سمے میرے مرنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ ماں، آپ بھی تو بہت شوق سے گوری کو بہو بنا کر لائی تھی اور اب خود اسے تنگ آ گئی ہیں۔ ہاں، تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ آ کر میری ہی جان کی دشمن بن جائے گی۔ اچھا، میں سمجھاتا ہوں گوری کو۔ پھر کالو کوا گوری کوی کے پاس جاتا ہے۔ آگے ہو اپنی ماں کے پاس سے، ضرور پٹیاں پڑھائی ہوں گی تمہیں تمہاری ماں نے میرے خلاف۔ گوری، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اگر کچھ ایسا ویسا بول دیا کرے تو تم خود ہی چپ ہو جایا کرو، لیکن تم بھی آگے سے پورے جواب دیتی ہو۔ مجھے نہیں، اپنی ماں کو جا کر سمجھاؤ کہ میرے منہ نہ لگے، ورنہ ایسی ہی باتیں میرے منہ سے نکلیں گی۔ اگلے دن کالو کوے کو کسی کام سے دوسرے جنگل جانا پڑتا ہے۔ ماں، گوری، میں شاید اب 2-3 دن بعد گھر آؤں، پلیز پیچھے سے کوئی جھگڑا مت کرنا۔ سن لیا بہو، اب مجھ سے لڑائی مت کرنا۔ کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوری کوی ندی سے پانی لینے جاتی ہے تو وہاں اسے اس کی دوست چمکیلو مل جاتی ہے۔ کیسی ہو گوری سہیلی؟ آج بڑے دنوں بعد ملی ہو۔ کیا ہی بتاؤں چمکیلو میں تمہیں، میں تو اپنی ساس سے بہت پریشان ہوں، میرا جینا مشکل کر رکھا ہے اس نے۔ لو بس اتنی سی بات، میں تمہیں ابھی اس مسئلے کا حل بتاتی ہوں۔ اچھا جلدی بتاؤ پھر۔ ساس کو کسی بہانے سے ویران پہاڑوں والے جنگل چھوڑاؤ، وہاں جو چیلیں رہتی ہیں تمہاری ساس کو کھا جائیں گی، پھر نہ ساس ہوگی اور نہ ہی لڑائی۔ مجھے پتا تھا کہ میری سہیلی کے پاس اس مسئلے کا حل ضرور ہوگا، میں تو آج ہی اس بڑھی کو وہاں لے جاتی ہوں۔ گوری کوی پانی لے کر گھر جاتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، ساسو ماں، میں آپ کو بتانا بھول گئی، رانو چڑیا نے آج شام ہماری دعوت کی ہے۔ وہ مجھے ندی پر ملی تھی، کہہ رہی تھی کہ شام کو ضرور میرے گھر آنا۔ وہ ہمیں بیٹھے بٹھائے بھلا کیوں دعوت دینے لگی؟ ساسو ماں، رانو چڑیا نے انڈے دیے ہیں، اسی کی خوشی میں اس نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس کا اور تو کوئی جانے والا ہے نہیں، اس لیے وہ ہمیں ہی اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہے پھر تو ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ پھر شام کو گوری کوی اپنی ساس کو ساتھ لے کر اڑتی ہے اور اسے پہاڑوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ارے بہو، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اس طرف تو کسی پکشی کا گھر نہیں ہے۔ نہیں ساسو ماں، بس تھوڑی ہی دور اور۔ گوری اپنی ساس کو پہاڑوں والے جنگل لے جاتی ہے۔ ساسو ماں، مجھے لگتا ہے میں راستہ بھول گئی ہوں، میں کسی سے راستہ پوچھ کر آتی ہوں، آپ تب تک یہیں بیٹھ جائیں۔ جلدی آنا بہو، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ گوری اپنی ساس کو وہاں چھوڑ کر خود گھر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے رانو چڑیا دانا لے کر گزرتی ہے۔ سنو چڑیا بیٹی، میری مدد کرو۔ رانو چڑیا گوری کی ساس کے پاس آتی ہے۔
जी माँ जी, बताएं मैं आपकी क्या मदद करूं? बेटी, हम इस जंगल में खो गए हैं। मैं और मेरी बहू किसी रानो चिड़िया के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ता भूलकर यहाँ आ गए। माँ जी, मैं ही रानो चिड़िया हूँ, आए मेरे साथ, मेरे घर चले। मेरी बहू पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढने गई थी। माँ जी, गौरी ने ज़रूर आपके साथ मजाक किया होगा, वरना उसे मेरे घर का रास्ता कैसे भूल सकता है। वो तो हर रोज़ मेरे घर से कोई ना कोई चीज़ लेकर जाती है। वो तो पहले ही मुझे मारना चाहती थी, ये सब उसने मुझे मारने के लिए ही किया है। माँ जी, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, ये चीलों का इलाका है। फिर रानो चिड़िया गौरी की सास को अपने घर ले जाती है और उसे अच्छा सा भोजन खाने को देती है। रानो बेटी, तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। माँ जी, मेरी सास को भी मेरा खाना बहुत पसंद था। उनके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक तुम हो जो अपनी सास का ख्याल रखती थी, और एक मेरी बहू है जो मुझे मारना चाहती है। गौरी की सास खाना खाकर अपने घर वापस चली जाती है। गौरी कभी घर में सोने का हार निकाल कर खड़ी थी। अब तक तो वो बुढ़िया मर भी गई होगी, अब तो ये हार मेरा हुआ। पीछे से उसकी सास भी आ जाती है। इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं हूँ। गौरी डर जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है। जब अगले दिन गौरी कव्वी नदी से पानी लेने जाती है तो उस नदी पर पहले ही बहुत से पक्षी थे। गौरी कव्वी दूसरी नदी की तरफ जाती है। वहाँ एक पेड़ में चील छुप कर बैठी थी। वो गौरी कव्वी को पीछे से पकड़ लेती है। बहुत दिनों से भूखी थी, आज तो भोजन मिल गया मुझे। गौरी रोने लग जाती है। चील गौरी कव्वी को पेड़ के साथ बांध देती है। तोता गौरी को देख लेता है और जल्दी से जाकर गौरी की सास को बता देता है। गौरी की सास डंडा उठाती है और अपनी बहू की मदद को चाहती है। गौरी की सास पीछे से जाती है और जोर से डंडा चील के सर पर मारती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को हाथ लगाने की, निकल यहाँ से। चील डरकर वहाँ से भाग जाती है। दोनों गौरी और सास घर आ जाती हैं। मुझे माफ कर दे सासू माँ, मैंने आपको मारना चाहा, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई। बहू, मैं भी तुमसे अपने गहनों के लिए फजूल में ही लड़ाई करती हूँ। ये गहने तो अब तुम्हारे ही हैं, इनको अलमारी में सजा कर रखने से मैंने क्या ही कर लेना है। फिर गौरी की सास अपनी बहू को सोने का हार दे देती है और दोनों सास बहू प्यार से मिलजुल कर रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने बहुत मुश्किल से आखिरकार चोर चील को पकड़ ही लिया था। चील, तुम जहाँ पर भी चली जाती ज़रूर पकड़ी जाती। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तुमने कई घरों में चोरियाँ की हैं और कई मासूम पक्षियों का कत्ल किया है। अब तुम सारी ज़िंदगी इस जेल में चक्की पीसोगी। तुम्हें बाहर निकलने का एक भी मौका नहीं दिया जाएगा। जिस दिन मैं इस जेल से बाहर निकल गई ना, तब तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमें पागल समझ रखा है। तुम पर हम सब कड़ी निगरानी रखेंगे। कालू इंस्पेक्टर, अब तुम्हारा काम है कि रात को चील पर कड़ी नजर रखो। ठीक है इंस्पेक्टर रानो चिड़िया, आप आराम से घर चली जाएं। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर रानो चिड़िया के जाने के बाद कालू चील से कहता है, चील, तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? तो कौन इस सड़ी हुई जगह पर रहेगा? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसे तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम्हें इसके बदले ज़रूर कुछ चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम मुझे बदले में पैसे दोगी। बस इतनी सी फरमाइश? मेरे पास बहुत सोना है, एक बार मुझे छोड़ दो, फिर तुम सारी जिंदगी ऐश करोगे, ऐश। ठीक है, मैं तुम्हें परसों तक पहाड़ों के पास मिलूंगा और तुम मुझे मेरे पैसे दोगी। लेकिन एक शर्त और है, तुम निकलने के बाद
किसी भी पक्षी को मारोगी नहीं। अच्छा अच्छा, अब मुझे छोड़ भी दो। फिर कालू चील को जेल से बाहर निकाल देता है और चील जल्दी से उड़कर बाहर आ जाती है। मुझे उस कालू कौवे के बच्चे ने पागल समझ रखा है। जो इतनी मेहनत से चुराया हुआ धन दौलत मैं उसे दे दूंगी और पक्षियों को तो मैं जरूर मारूंगी। उसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। अगले दिन मैना का बच्चा और बुलबुल का बच्चा नदी किनारे खेल रहे थे कि चील उन दोनों को देख लेती है। नरम नरम मांस, जेल की सड़ी हुई रोटी खाकर तो कल मेरा पेट ही खराब हो गया था। आज तो स्वादिष्ट भोजन खाऊंगी। चील जल्दी से बच्चों को उठाने जाती है। बुलबुल का बच्चा चील को देख लेता है। वो शोर मचाता है, चील चोर चील, जल्दी भागो। वो दोनों बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चील जल्दी से उन दोनों बच्चों को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। रानो इंस्पेक्टर जेल में आती है। कालू इंस्पेक्टर, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे सामने आओ। जी रानो इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कहाँ थे तुम? रात को तुम्हें मैंने कड़ी निगरानी रखने को कहा था, लेकिन तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। रानो इंस्पेक्टर, मैंने चील पर कड़ी नजर रखी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। जब सुबह उठकर देखा तो जेल खुली थी और चील फरार हो चुकी थी। जैसे ही वो चील सुबह निकली है, साथ ही वो मैना और बुलबुल के बच्चों को उठा कर ले गई है। उन दोनों की माएं रो रही थी। वो चील तो जिसको भी पकड़ ले फिर जिंदा वापस नहीं करती। कालू कौवा दिल में सोचता है, कमबख्त चील, उसको कहा भी था कि कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, लेकिन वो बाज कहाँ आती है। छुट्टी के बाद कालू कौवा पहाड़ों पर जाता है। चील, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे सामने आओ। चील वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम निकलने के बाद किसी पक्षी को हाथ मत लगाना, लेकिन तुम अपनी बात से मुकर गई। इस तरह तो तुम्हें भी कहा जाता है, चोरों पर कड़ी निगरानी रखो, लेकिन तुम भी तो अपने काम में डंडी मारते हो और रिश्वत लेकर छोड़ देते हो। अपना मुंह बंद रखो। मैना और बुलबुल के बच्चे वापस करो। वो तो अब मेरे पेट के अंदर है। क्या मजेदार जायका था दोनों का। मैं अभी सबको जाकर बताता हूँ। अभी पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाती है। जब पुलिस मुझे पकड़ने आएगी तो मैं उनको बता दूंगी कि तुमने पैसों के बदले मुझे छोड़ दिया। इस तरह अपनी नौकरी से भी जाओगे और सारी जिंदगी मेरे साथ जेल में ही रहोगे। अब जाओ यहाँ से और मुझे तंग मत करो, मेरा आराम का वक्त है। कालू इंस्पेक्टर उदास मन के साथ अपने घर चला जाता है। कालू की माँ कालू से पूछती है, बेटा कालू, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो? माँ, आपको तो पता है कि गौरी के भाई ने कहा था जब तक मैं उसके लिए एक बड़ा घर ना बनाऊं, वो मुझसे गौरी की शादी नहीं कराएगा। और मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि उससे मैं घर बना सकूं। तो मैंने चील को पैसों के बदले जेल से फरार करा दिया। कालू, ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऐसी शिक्षा तो नहीं दी थी मैंने कि तुम 2 नंबर काम करते फिरो। जाओ, मेरी नज़र से दूर हो जाओ, और जब तक तुम चील को मार कर नहीं आओगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। कालू कौवा डंडा लेकर पहाड़ों के पास जाता है। चील, चील, कहाँ हो तुम? कालू कौवा चील को आवाजें देता है, लेकिन चील वहाँ नहीं आती। फिर कालू कौवा झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है और बच्चों की तरह आवाजें निकालने लगता है। चील को लगता है कि वहाँ छोटे बच्चे हैं। चील वहाँ आ जाती है। जैसे ही चील वहाँ आती है, कालू कौवा पीछे से आता है और जोर का डंडा चील के सर पर मारता है और चील को मार देता है। फिर कालू कौवा मरी हुई चील जंगल में ले जाता है। सारे पक्षी कालू की बहादुरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ गौरी कव्वी भी आई हुई थी। गौरी कव्वी घर जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया अब तो मेरी शादी कालू से करवा दें। बहन गौरी, मैंने तो इसलिए तुम्हारे लिए बड़ा घर बनाने को कहा था ताकि तुम्हें किसी भी चीज में मुश्किल ना हो। बड़ा घर तुम्हारी अच्छे से हिफाजत करेगा। भैया जरा सोचे, बड़े घर में मेरी शादी हो जाए लेकिन मेरा पति डरपोक हो तो क्या फायदा? आपने देखा तो है कि किस तरह कालू उस खतरनाक चील को मार कर ले आया है। इस तरह वो मेरी हिफाजत भी अच्छे से करेगा। अच्छा ठीक है, जहाँ मेरी बहन खुश वहाँ मैं भी खुश।
ऐसे कालू कौवे और गोरी कौवी की शादी हो जाती है। कालू कौवा बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। मेहनत करने से उसका मन बहुत कतराता था और वो जो भी काम करता था उसमें डंडी जरूर मारता था। कालू, नाश्ता कर लिया है, चलो अब जल्दी से काम पर जाओ। ऐसे बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिल सकता। गौरी, जाता तो हूँ मछलियाँ पकड़ने, लेकिन दरिया में पानी बहुत कम है, मछलियाँ भी अब कम हो गई हैं। मेरे सामने ये कहानियां बनाना छोड़ दो, जैसे मुझे तो तुम्हारा पता ही नहीं है। हर काम में आलसीपन दिखाते हो। अब उठो और जाओ। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, पीछे ही पड़ गई हो मेरे। कालू कौवा अपना मछलियां पकड़ने वाला जाल उठाता है और दरिया के किनारे चला जाता है। वो काफी देर तक जाल दरिया में फेंकता है, लेकिन कोई भी मछली जाल में नहीं आती। तोता उड़ता हुआ कौवे के पास आता है। कालू, इस दरिया में तो मछलियां पहले ही कम है, यहाँ बैठकर अपना समय ज़ाया मत करो। मैंने सुना है कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक दरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वहाँ जाओ। मुझे मरवाना चाहते हो? वहाँ पर तो बड़ी बड़ी चीलें रहती हैं। सब फर्जी बातें हैं। कोई कौन सा वहाँ क्या है, वहाँ जाकर पता लग जाएगा कि चीलें हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम वहाँ पर जाकर अपनी दुकान लगा लो, यहाँ पर क्यों लगाई है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात सुनकर मैं वहाँ चला जाऊँगा? अरे, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रहा था। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरा भला तो तुम मत ही सोचो। कभी भला सोचकर मुझे कोई चीज़ मुफ्त में तो नहीं दी और आए हो मुझ पर एहसान करने। तोता गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। कोई मछली पकड़ी भी है या फिर सोते ही रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आया हूँ, शाम तक एक दो पकड़ ही लूँगा। और एक दो तो हम खुद ही खा लेंगे। तुम जाओ और चावल लेकर आओ। रात को मेरा मछली चावल बनाने का मन है। मैं फंसाऊंगी इनको जाल में। हाँ, जैसे मुझे अपने जाल में फंसाया था। तुम जैसे भोहड़ को तो कोई मेरे अलावा मुंह भी नहीं लगाता था। कालू गोरी से पैसे लेकर चावल लेने चला जाता है। रास्ते में रानो चिड़िया आ रही थी। रानो, कहाँ से आ रही हो? कालू भाई, मैं बाजार गई थी अपनी बांस की टोकरियां बेचने। अच्छा, कितना कमा लेती हो बांस की टोकरियां बेचकर? इतना तो कमा लेती हूँ कि घर का खर्चा आसानी से पूरा हो जाता है। कालू कौवा चावल लेकर घर आ जाता है। गोरी कौवी भी घर आ गई थी। कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। क्या रानो चिड़िया तुम्हें अपने साथ काम पर रख लेगी? तुम्हारे आलसीपन के बारे में तो सब जानते हैं। इतनी भी बुरी नहीं है चिड़िया। मैं उसे 2-3 अपनी दुख भरी कहानियां सुनाऊंगा तो मुझ पर तरस खाकर रख ही लेगी। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और उससे काम के बारे में पूछता है। ठीक है कालू भैया, मैं टोकरियां बनाया करूंगी और आप उसे बाजार जाकर बेच आया करना और मुनाफा हम दोनों आधा आधा कर लिया करेंगे। फिर रानो चिड़िया बांस लाती है और उसकी टोकरियां बनाना शुरू करती है। टोकरियां बनाकर रानो चिड़िया कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो टोकरियां लेकर बाजार जाता है और उनको भारी दामों बेच आता है। रानो को क्या लगता है मैं इतनी मेहनत करूं और फिर भी आधा हिस्सा लूं? आधा हिस्सा कमाई का मैं पहले ही अपने पास रख लूंगा और आधा जाकर रानो को दे दूंगा। फिर रानो अपने हिस्से में से भी मुझे आधा देगी और फिर पैसे ही पैसे होंगे। फिर कालू कौवा कमाई में से आधा हिस्सा पहले ही गोरी को दे जाता है और बाकी हिस्सा रानो को जाकर दे देता है। कालू भाई, टोकरियां इतनी कम कीमत पर क्यों बिकी हैं? जब मैं जाती हूँ तो अच्छे खासे दामों पर बिक जाती है। क्या बताऊं रानो चिड़िया, आज बाजार में 2 पक्षी और आए थे, वो भी बांस की ही टोकरियां बेच रहे थे। तुम तो शुक्र करो हमारी टोकरियां आज मैं मेहनत के साथ बेच आया। अच्छा, लो ये आपका आधा हिस्सा। कालू कौवा खुशी खुशी अपना आधा हिस्सा पकड़ता है और अपने घर चला जाता है। कुछ दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ ऐसा ही करता है। एक दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर आती है तो वो गोरी और कालू की बातें सुनकर बाहर ही खड़ी हो जाती है। वाह कालू वाह, जो तुम पूरे जीवन में नहीं कमा सके
वो इन 2-3 दिनों में कमा बैठे हो। रानो बेचारी को तो कभी भी नहीं पता लगेगा कि आधा हिस्सा मैं पहले ही अपने पास रख लेता हूँ। हाँ तो तुम कौन सा कुछ गलत करते हो? इतनी मेहनत से उड़कर तुम बाजार जाते हो, तुम्हें तो ज्यादा हिस्सा ही मिलना चाहिए। रानो ये सब सुन लेती है। उसको कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। रानो चिड़िया कौवों के घर के अंदर जाती है। वापिस करो मेरे सारे पैसे। कौन से पैसे? वही जो तुम अपने पास रख लेते हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक तो मैंने तुम्हें काम पर रखा और तुम मेरे साथ ही धोखा करना शुरू हो गए। तो कुछ गलत नहीं किया मेरे पति ने, अब निकलो मेरे घर से। तुम्हारे बिना भी हम इतने ही पैसे कमा सकते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, अब टोकरियाँ कौन बनाया करेगा? मेरी माँ को बनाना आती है, मैं उनसे सीख लूंगी। और थोड़ी बहुत तो रानो के पास बैठकर बनाना मैं भी सीख गया हूँ। चलो फिर जंगल में बांस लेने चलते हैं। कौवा और कौवी जंगल जाते हैं, लेकिन वहाँ तो बांस के पेड़ खत्म हो जाते हैं। कालू चलो दूसरे जंगल चलते हैं। फिर कौवा और कौवी दूसरे जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कबूतर मिलता है। क्या तुम साथ वाले जंगल के पक्षी हो? तुमने अपना घर पक्का कर लिया? घर क्यों पक्का करना है? आज तुम्हारे जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। हमारे जंगल के राजा ने तुम्हारे जंगल के राजा को संदेश भिजवाया था। गौरी, कहीं हमारा घर टूट तो नहीं गया होगा? तुम्हारी काली जुबान, कुछ नहीं होगा हमारे घर को। फिर कौवा और कौवी जल्दी से अपने जंगल वापस आते हैं, लेकिन तूफान इतना जोर का था कि उनका घर पेड़ से नीचे गिर जाता है और उनका सारा पैसा पानी में बह जाता है। हमारा घर, हमारा पैसा, सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम तो किसी का बुरा भी नहीं सोचते। वो दोनों वहाँ पर बैठकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि ना तो उनके सर पर छत थी और ना ही कुछ खाने के लिए पैसे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है अंत में उसके साथ भी बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।